तो फ्रेंड, अरिहंत का जो चैप्टर वाइज एम एमसीक्यू चैलेंज जो चल रहा है, आज है चैप्टर नीति आयोग से, उसका हम एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एमसीक्यू किए जा रहे हैं अरिहंत का चैप्टर वाइज एमसीक्यू से, इंडियन इकोनॉमिक्स से। लेट्स स्टार्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करके नीति आयोग को गठन किया गया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। On 1st January 2015, Cabinet resolution was passed to replace the Planning Commission with newly formed नीति आयोग come into existence on। नीति आयोग कब अपना किस डेट को मतलब आया 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कम इंटू एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट विच फॉलो ए टॉप डाउन मॉडल्स। द नीति आयोग काउंसिल कंप्राइज ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर along with चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, पांडिचेरी, Lieutenant Governor, all Union Territory, and Chairman, Vice Chairman nominated by Prime Minister. Who was the first Vice Chairman of नीति आयोग? नीति आयोग का पहला वाइस चेयरमैन कौन था? अरविंद पंजारिया इसका होगा आंसर। इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अरविंद पंजारिया was appointed as first vice chairman of नीति आयोग between 2015 to 2017. He was awarded by Padma Bhushan by President of India in 2012 for his contribution in field of economic and public policy. The Development and Monitoring and Evaluation Office, which monitor the progress of long-term policy to in attached of office under। डेवलपमेंट के बारे में और मॉनिटरिंग एवेल्यूशन ऑफिस कौन सा ऑफिस से अटैच है? तो ये होगा नीति आयोग से। The Development Monitoring and Evaluation Office was monitor the progress of long-term policies in attached to नीति आयोग। Who among the following is CEO of नीति आयोग का CEO कौन होता है? तो अमिताभ कांत is second chief executive officer of नीति आयोग, a public policy think tank of the government of India। Amitabh Kant is a 1980 batch retired Indian Administrative Service Kerala cadet। Who among the following has not been the deputy chairman of Planning Commission? P. Chidambaram। Among the given option, P. Chidambaram has not been deputy chairman of Planning Commission in India. Dr. Manmohan Singh became deputy chairman of Planning Commission has 15 January 1985 to 1987. Pranab Mukherjee was which of the following economic cabinet of India by Ashok Chandra? अशोक चंद्रा के द्वारा कौन सा ऑफिस को इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया कहा गया? तो वो होगा प्लानिंग कमीशन।
Among the given option, Planning Commission called Economic Cabinet of India by Ashok Chandra. प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया कहा अशोक चंद्रा के द्वारा. ही कॉल्ड इट इकोनॉमिक कैबिनेट बिकॉज इट हैज sufficient power of fund allocation. Planning Commission was non-constitutional and non-statutory body was responsible to formulate 5-year plan for social and economic development in India. Which one of the following is not correct about नीति आयोग? नीति आयोग से रिलेटेड कौन नहीं है उसको बताना है. इट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन. इट हैज ए फुल टाइम इसका फुल टाइम चेयरमैन नहीं रहता है. इट was constituted on January 2015. It was based on cooperative federalism. According to the last report of Niti Aayog, which of the following state is best in India as fastest growing economic 2014 to 15? बिहार. नीति आयोग के द्वारा सबसे तेज ग्रो करने वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार. The principal reason why national economy planning is still being pursued in spite of embracing market economics since 1991 is that 5-year plan can continue to provide long-term perspective to the economy in market-friendly fashion. The principal reason of national economic planning is still being pursued in spite embracing market economy. Its 5-year plan is continue to provide long-term perspective to the economy in market-friendly fashion. National Development Council is mainly concerned with approval of 5-year plan. National Development Council mainly concerned with approval of 5-year plan. NDC is apex body of decision making and deliberation on development matter in India pursue our Prime Minister. Five-year plan. Where was the first 5-year plan started? USSR. सबसे पहले 5-year प्लान कहाँ से स्टार्ट हुआ? USSR. प्लानिंग के बारे में आप लोगों को कुछ बताते हैं. अगर कोई भी चीज़ हम लोग को करना है तो सबसे पहले प्लान करते हैं. उसी तरह पूरा देश को विकास करने के लिए एक प्लान का डेवलपमेंट होता है. देश का विकास में बहुत सारा फैक्टर होता है. वेलफेयर करना, फिर सेल्फ रिलायंट बनना, कोई भी चीज़ में प्लानिंग में टारगेट रखा जाता है कि इस इतना साल में हम लोग ये चीज़ अचीव करेंगे. यहाँ रोड बनाएंगे, यहाँ हाईवे बनाएंगे, यहाँ इस चीज़ का एयरपोर्ट बनाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे. जिस चीज़ का कमी रहता है उसको पूर्ति करने के लिए हम लोग प्लानिंग का इसमें मेन मुद्दा अभी का प्लानिंग जो नीति आयोग बनता है उसमें बहुत सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए पानी की सुविधा, हाउसिंग सुविधा, फिर राशन का सुविधा सबको प्रोवाइड किया जाता है. ये सब प्लानिंग के थ्रू ही बनता है. लेकिन बजट में भी हम लोग हाईवे बनाने का
के बारे में देखते हैं, लेकिन प्लानिंग जो हम लोग का स्टार्टेड हुआ यूएसएसआर से हुआ, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, रसिया से। वहीं सबसे पहले प्लानिंग को एडॉप्ट किया गया। और जब रसिया प्लानिंग को अपना देश में उतारा, इस तरह से प्लानिंग होगा, तो वो काफ़ी सक्सेस हो रहा। उस सक्सेस को देखते ही अदर कंट्री उससे इंस्पायर हुआ, और वो भी अब प्लानिंग जैसा प्लानिंग कमीशन जैसा संस्था को खोला, और प्लानिंग के थ्रू ही विकास करने के लिए सोचा। द फर्स्ट 5-year प्लान वाज स्टार्टेड इन यूनियन ऑफ सोवियत Socialist Republic in order to become an individual powerhouse. Modern machinery was adopted across country to maximize production efficiency and output. The first such plan was implemented Soviet Joseph Stalin. 1928 में ही सोवियत यूनियन ने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया, और उसका हेड था जोसेफ स्टेलिन। प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया गया, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिला। विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5-year प्लान। फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या अप्रूव किया प्लानिंग के? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल had final authority in India to approve 5-year plan. The 5-year plan has been replaced by 3-year action, which are under purview of Niti Aayog. From where is Yojana maximize मैगजीन पब्लिश्ड? योजना मैगजीन कौन सा साल कहाँ से पब्लिश होता है? योजना मैगजीन पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। योजना इज मंथली जर्नल डिवोटेड टू सोशियो इकोनॉमिक इशू। इट स्टार्टेड publication in 1957 by खुशवंत सिंह एज ए चीफ एडिटर। योजना मैगजीन जो है उसको पब्लिश्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पब्लिश करता है। उस सोशियो इकोनॉमिक के बारे में देखता है, किस तरह से हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जा रही है, किस तरह से पानी की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, किस तरह से हाउसिंग फैसिलिटी चल रहा है, जनजाति लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा कि नहीं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट देश को अच्छा से पहुंचाया जा रहा है। Arrange the following in chronicle order. First 5-year plan was submitted to Parliament. National Development Council was set up. First devaluation of Indian currency after independence took place. India became member of International Monetary Fund. पहले IMF का मेंबर बना, फिर करेंसी का डिवैल्यूएशन करा, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप हुआ, फिर 5-year प्लान सबमिटेड पार्लियामेंट में सबमिट किया गया। इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ IMF इन दिसंबर 1945 को ही IMF का सदस्य बन गया इंडिया। Indian rupee was devalued for first time after independence.
in September 1949. पैसा का कीमत को गिराया गया फर्स्ट टाइम 1949 को, फिर 1966 को गिराया गया डॉलर के खिलाफ, और फिर 1979 को 1991 को भी गिराया गया इसका मूल्य को, पैसे के मूल्य को। फर्स्ट 5 year प्लान वाज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट in December 1952 but implemented in first 5 year plan was started in, इसका होगा आंसर ए 1951 to 1956। फर्स्ट 5 year plan was started 1951 to 1956। The first 5 year plan launched in 1951 which mainly focused on development of primary sector बेस्ड ऑन हार्वर्ड डॉमर मॉडल। पहला जो 5 year प्लान वो स्टार्टेड हुआ 1951 से 1956 तक चला, और इसका मेन फोकस था प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया जाए। कैसे? प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसको कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। पहला चीज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5 year प्लान का, 5 year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ रिलायंस होना, किसी भी फील्ड में आत्मनिर्भर होना, और फिर रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन एड, फॉरेन से ज़्यादातर एक्सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को इंपोर्ट नहीं किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ये सब मेन फोकस है 5 year प्लान का। Main objective of 5 year plan is self-reliant in reducing dependency of foreign aid. 5 year plan started in 51 and in 2017. Second 5 year plan of India was based on an economic model of developed by P.C. Mahalanobis. Second 5 year plan India based economic model of development PC Mahalanobis. This model suggests that there should be an emphasis on heavy industry which can lead Indian economy to long term higher growth. सेकेंड 5 year प्लान जो था वो इंडस्ट्रियल पर बेस्ड था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। पहला 5 year प्लान में तो एग्रीकल्चर का जब देखा गया सक्सेस, हाँ इस अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को सेटअप किया गया। बहुत मेन जगह पर इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, उससे बेनिफिट हुआ किया जाए। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, बहुत सारा ज़रूरत की मशीनरी को बनाया जाए, बहुत सारा प्रोडक्ट को बनाया जाए, उसके लिए इंडस्ट्री खोला गया। बाहर से कम इंपोर्ट किया जाए, लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले, फिर से एक इंडस्ट्री को खोला जाए और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए सेकेंड 5 year प्लान में इंडस्ट्री को खोला गया। जैसे आयरन हो गया, कोर इंडस्ट्री, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। अंडर विच 5 year प्लान वाज डिसीजन टू एस्टेब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज टेकन बाय सेकेंड 5 year प्लान। अंडर second 5 year plan was decision to establish socialist pattern of society was taken. Second 5 year plan was based on socialist model for 25% rise in national income through rapid industrialization, but only 20 is realized. अब सेकेंड 5 year प्लान का तो एकदम मतलब इसका बहुत सक्सेस किया ये 5 year प्लान। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों के पास पैसा आने लगा। इंडस्ट्री खोलने के बाद हम लोग को पता ही चलता है कि बाहर से किसी चीज़ का डिपेंडेंसी भी कम होने लगा। लोग
लोगों के हाथ में मनी आने लगे, लोग टेक्नोलॉजी से परिचित हुए, और लोगों का रहन सहन भी बढ़ा, लोगों का रहन सहन में कुछ सुधार हुआ। Malnovis plan model adopted in India in mid-50s aim at setting up heavy industry which were capital intensive. Malnovis plan adopted in India in mid-50s aims at shaping heavy industry which were capital intensive. Steel plant at Bhilai, Durgapur and Rourkela was established in second 5-year plan. Enhanced coal production and more railway line were introduced. सेकेंड 5 ईयर में 3 ठो स्टील प्लांट का खोला गया, जैसे भिलाई में खोला गया, दुर्गापुर में और राउरकेला में खोला गया। और फिर उसमें रेलवे को बढ़ावा दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को प्लेटफॉर्म को बिछाया गया और रेलवे का विकास किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। In which 5-year plan did agriculture show negative growth? थर्ड 5-ईयर प्लान में एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ को दिखाया गया। द थर्ड 5-ईयर प्लान जो चालू हुआ 1961 से 1966 तक चला, स्ट्रेस एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट बट साइनो एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करना चाहा थर्ड 5-ईयर प्लान में। फिर वीट को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ के लिए फोकस किया गया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया और चीन में लड़ाई हो गया था 1962 को। तो जितना भी खर्चा अपना डेवलपमेंट में लगाना चाहिए वो चल गया डिफेंस सेक्टर में। बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों को। जब डिफेंस में गया तो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेपन का ज़रूरत पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत पड़ा। लोग डाइवर्ट हो गए और प्लानिंग का जो डिसीजन भी तय करना था वो भी डाइवर्ट हो गया और दूसरा चीज़ में चला गया, डिफेंस सेक्टर में चला गया। जो ध्यान हम लोग को देना था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना में, वो बढ़ावा देने छोड़ के डिफेंस में सब चीज़ चला गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। द सेकेंड 5-ईयर प्लान एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। सही है। सेकेंड 5-ईयर प्लान जो चला था, फर्स्ट 5-ईयर प्लान चला था 1951 से 1956 तक, और 1956 से 1961 तक सेकेंड 5-ईयर प्लान चला था। एम्फेसिस ऑन एस्टेब्लिश ऑफ हैवी इंडस्ट्री विच लीड इंडिया इकोनॉमिक टू लॉन्ग टर्म हायर ग्रोथ। सेकेंड 5-ईयर इंट्रोड्यूस इन इम्पोर्ट substitution strategy of industrialization. Import substitution is a strategy under trade policy that abolishes the import of foreign product, encourage production in domestic market. The period of plan holiday in India 1966 to 1969। The period of plan holiday in India was 1966 to 1969 due to failure of third 5-ईयर plan
द गवर्नमेंट डिक्लेयर प्लान हॉलीडे। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, जो इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, उसमें डिफेंस के सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्चा करने के कारण इसको कुछ देर के लिए विराम कर दिया गया, रोक दिया गया प्लान, और प्लान हॉलीडे रख दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन the objective of self-sustaining development in India was first adopted in fourth 5-year plan. To achieve the self-reliance, goods should produce in their own country rather than importing from other countries to increase economic growth in every aspect. फोर्थ 5 ईयर प्लान में सेल्फ सस्टेन अपनाया जाए, सब चीज़ में, सब चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, हर चीज़ सेल्फ, सोशल वेलफेयर में, इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट बने, एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से रुके, ताकि। ठीक है सर, थैंक यू। अगले बार से आगे के वीडियो बनाए जाएंगे। आज भर इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो।